Student, today just I'm going to discuss about the surface area of the cylinder. Surface area of a cylinder, circular cylinder, right circular cylinder. तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया हम लोग आज करेंगे. तो व्हाट इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर? दिस सेट is called the right circular cylinder, but generally we use the only cylinder body use करेंगे जनरली. राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब ये होता है कि ये सीधा परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये और ये पार्ट कन्वर्जेंट होता है और ये सीधा होता है, मतलब इस तरह का वो नहीं हो सकता लाइक दिस. This is not right circular cylinder. This is not right circular cylinder. This is your right circular cylinder. Generally you use the cylinder, you can call the cylinder. So today we read about the area of the cylinder, surface area of the cylinder. So surface area of the cylinder, before going to discuss about the surface area of the cylinder, we need to discuss about the surface area of the cylinder and the formation of the cylinder by folding the rectangular sheet. इस रेक्टेंगुलर शीट जो है इसको फोल्ड करने के बाद ही सिलेंडर फॉर्म होता है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आइए डिस्कस करते हैं. देखिए ये जो रेक्टेंगुलर शीट है जिसका लेंथ है और ब्रेथ है, अगर इसको आप फोल्ड करते हो, इस तरह से फोल्ड करते हो, तो ये सिलेंडर फॉर्म होता है. ओपन सिलेंडर, इसका टॉप और बॉटम जो है ओपन होता है. तो हमारे पास जो सरफेस है यही सरफेस है. दिस राउंडेड सरफेस इज कॉल्ड द कर्व सरफेस. दैट्स व्हाई हियर यू यूज द कर्व सरफेस एरिया इन द प्लेस ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया इन क्यूबॉइड एंड क्यूब. क्यूब एंड क्यूबॉइड में जो वर्ड यूज करते थे फोर वॉल के एरिया के लिए लेटरल सरफेस एरिया, बट यहाँ जो ये राउंडेड फिगर है इसको एरिया निकालने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे कर्व सरफेस एरिया. तो कर्व surface area of the cylinder with radius is r and height is h is what? So area of this rectangular sheet is equal to the area of this cylinder, means curved surface area. Yani area of a rectangular sheet is equal to what? Length into breadth. Length into breadth. Length into breadth. Now what is the curved surface area of a cylinder? Of a cylinder, a right circular cylinder is equal to this length. This length becomes your what? This circumference of the circle. This circumference of the display, yani this is equal to 2 pi r. So this length becomes the 2 pi r and this b becomes your h. So that's why this is your 2 pi r h. So this is your curved surface area of cylinder with radius r and height h is your 2 pi r h. So remember this and try to apply this formula to solve the question. Next is your total surface area. So total surface area is the top surface area plus area of both ends. ये और ये दोनों को जोड़ देंगे. तो surface area, curved surface area is your 2 pi r h and this area both ends, this is one of the your pi r square and this base is your pi r square. This is equal to your 2 pi r h plus 2 pi r square. Take the common 2 pi r a. You can get the h plus r in bracket. This will be your total surface area of the cylinder. बस ये दो चीज़ है जिससे आप क्वेश्चन बनाओगे. ठीक है,
इसी के इस्तेमाल से आपका सारा क्वेश्चन बनेगा. नाउ कम एंड डिस्कस द सम स्पेशल टाइप्स ऑफ a cylinder that is called the hollow cylinder, because question may be asked related to this hollow cylinder. ठीक है. हॉलो सिलेंडर, जैसे अभी जो सिलेंडर हमने पढ़ा, इस रेक्टेंगुलर शेप से जो सिलेंडर फॉर्म हो रहा है, आपको पता है ये पेज का जो थिकनेस है यानी मोटाई है वो 0 लेट करके चलते हैं, मतलब कि नेग्लेजिबल है, मतलब एकदम इग्नोर करके चलते हैं कि इसका थिकनेस है ही नहीं. अब मान लीजिए कि ये रेक्टेंगुलर शेप इतना मोटा हो रहा है, तब इसको जब फोल्ड करेंगे तो इसका फिगर इस तरह का बनेगा. इस तरह का फिगर बनेगा जब ये इतना मोटा हो रहा है, थिकनेस इसका बढ़ रहा है. तो अब इसको हम लोग कहते हैं हॉलो सिलेंडर, मतलब खोखला. तो इसका अंदर का एरिया जो है कुछ और हो जाएगा और बाहर का एरिया कुछ और हो जाएगा. टॉप और बॉटम का एरिया सेम रहेगा लेकिन कुछ डिफरेंट होगा. तो अभी ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर, इनर आउटर, डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियस. रेडियस जैसे जैसे चेंज करते हैं उसी तरह इसका एरिया भी चेंज करता है. तो एरिया ऑफ इनर सरफेस, मान लीजिए इनर रेडियस स्मॉल आर है और आउटर रेडियस कैपिटल आर है. तो इनर सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड आउटर सरफेस एरिया is equal to 2 pi r h. कैपिटल हो जाएगा यहाँ स्मॉल हो जाएगा. ठीक है. तो किसी क्वेश्चन में ये अलग अलग भी पूछ सकता है कि गिवन हॉलो सिलेंडर्स inner diameter is something and outer diameter or something, then find the area of inner surface, find the area of outer surface, find the area of the top and bottom. इस तरह अलग अलग पूछेगा. अगर मान लीजिए कि वो डायरेक्ट कहता है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर, तब आपको इनर भी निकालना पड़ेगा, आउटर भी निकालना पड़ेगा एंड एरिया ऑफ बोथ एंड्स. तो इसका एरिया क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. इसलिए इस पाथ का एरिया, ये क्या है, सर्कुलर पाथ है. क्लास 7 में पाथ का एरिया निकालना आप देखे थे, रेक्टेंगुलर पाथ का, सर्कुलर पाथ का, उसको बाहर वाले एरिया से अंदर वाले एरिया को माइनस करते थे जिससे पाथ का एरिया निकलता था. तो बाहर वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर स्मॉल, और इसको निकाल लेंगे तो ये रेस्ट का एरिया फॉर्म हो जाएगा. यानी और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर और नीचे दोनों का हो जाएगा. दिस इज 2 पाई इनटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. अभी अब टोटल सरफेस एरिया जब निकालना होगा तो यहाँ ऐड दिस एंड दिस, इन तीनों को ऐड करना होगा तो वी कैन गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर. तो टोटल सरफेस एरिया अगर पूछता है तो ये और ये सबको ऐड करना होगा. ये क्वेश्चन हमेशा अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर पूछता है तो 3-4 मार्क्स में जाएगा. पार्ट वाइज पार्ट भी क्वेश्चन है. 13.2 का क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखेंगे तो उसमें 2 या 3 थर्ड क्वेश्चन है जिसमें ये क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है. उस क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे. क्या देखिए अब देखिए इसमें क्या है कि ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए है क्या. दिस इज अ रिंग, इसको रिंग कहते हैं. दिस इज स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल आर. तो एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर. ये इसका एरिया. तो बस इतना ही फॉर्मूला को लेकर हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है. नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 13.2 उसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे. अब मान लीजिए क्वेश्चन है, हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन हो लेकिन मुझे नहीं मालूम ये
कौन सा क्वेश्चन है, नहीं भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि गिवन की एरिया इक्वल टू 88 सेंटी स्क्वायर एंड रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एज। ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर, मान लीजिए एरिया है हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर का एरिया होगा 2 पाई r h इक्वल टू कितना है 88 है, 2 into 22/7 into 14 into 10 इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। अब इस तरह से सॉल्व कर दोगे प्लीज, कितना हो जाएगा 88 into h इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। दिस इज h इक्वल टू 88 सेंटीमीटर बाय, ठीक है। तो शायद ये एच है, एच भी हो सकता है, एच भी ये हो सकता है, मान लीजिए एच ही कर लो और डायमीटर वर्क 88, दिस इज 1 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर इक्वल टू 2r, सो 2 into 1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा कि दिस इज रेडियस, दिस इज हाइट, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन हॉलो सिलेंडर, ओपन सिलेंडर, बट हियर गिवन दैट एरिया इज गिवन, मतलब एरिया ही दे दिया आपको और हाइट दे दिया और आपसे पूछ रहा है डायमीटर, रेडियस भी नहीं पूछ रहा है। तो रेडियस के थ्रू आपको डायमीटर पे जाना होगा, तो डायमीटर आपको आता है कि नहीं आता है ये भी वो चेक कर लिया कि रेडियस और डायमीटर का आपका रिलेशन, मतलब एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन भी एक ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं देता है कि आप लोग प्रैक्टिस कर लो, एक सिंपल क्वेश्चन है फिर उस पर कुछ और क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन होता है। तो ठीक है, इतना करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड। ओके।